This is Ankit, and you are watching SAS Happy Learning. So, in this channel, I bring different contents related to CAT preparation. So, today I have brought a question on critical reasoning, and this will be based, this is a type of a para completion question. Okay. So, what important points we have to take care of before proceeding for the question? First, we have to identify our subject, our hero. We have to know which is our subject, which is my hero. Then I have to focus on my conclusion. What's my conclusion? What the paragraph is telling me about? What is the starting thought? What is the ending thought? What is the supporting statement? What is the premise the paragraph is presenting? Next, these 3 points are pretty important to answer the inference question, the assumption question, the para completion question. What are the variety of questions are there? These 3 points are very important to know from the whether it be a passage, whether it be a paragraph, whether it be anything. So, so if we know these 3 things, then we can proceed with the reading the passage or paragraph. Then we'll proceed with the options. And when going through the options, we have to focus on 3 things, 4 things, like how can we eliminate the 3 options because of right reasons. तो सही रीजन से अगर गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया हमने, तो जो बचेगा वो हमारा सही आंसर होगा. सो ऑप्शन हमारा स्कोप के बाहर हो सकता है, आउट ऑफ स्कोप, पैरा में उसके बारे में बात ही नहीं हुई है और वो मेंशन किया गया है, सो दैट इज नॉट आवर आंसर. अगर सब्जेक्ट चेंज हो गया है, सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया है, या फिर कुछ और मेंशन किया है, इररेलेवेंट सा कुछ बात कर लिया है, तो दैट इज नॉट आवर आंसर. सो इफ द fact supporting statement is presenting some irrelevant topics, irrelevant thought, then also it cannot be my answer. So let's proceed with the paragraph. So it is mentioning about emerging economies. In emerging economies in Africa and other regions, large foreign banks that were set up during the colonial era have played a major economic role. So it is saying that in emerging economies, अभी emerging economies कौन सी होती है जो like grow कर रही है, like they are not like at their full potential, they are still trying to catch up to their potential. So emerging economies है, अफ्रीका है, अदर रीजन्स, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज फॉरेन बैंक्स है. फॉरेन बैंक मतलब कंपनीज फ्रॉम अदर बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज. So large foreign banks that have set up during the colonial era. So Africa and many other countries were a colony. Colony मतलब उनके अंडर, कब्जे में, मतलब कैप्चर किए हुए थे, लाइक बाय द लाइक ब्रिटिश कह सकते हैं और अदर कंट्रीज जिनके कब्जे में था. तो उनके जो बैंक्स है वहां पे, वो उनके इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. बट अब यहाँ पे देखते हैं क्या आगे कहता है. These institutions have tended to confine their business to the wealthier of banks' potential customers. नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस है वो कहाँ तक कन्फाइन है, वहां कहाँ तक सीमित है? सिर्फ जो वेल्दियर क्लाइंट्स है, वेल्दियर कस्टमर्स है, वहीं तक सीमित है. ओके, ये कह रहा. अब जो मेन यहाँ पे मुद्दा है वो बट के बाद आता है हमेशा. बट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. यहाँ से जो थॉट है वो चेंज होता है. तो यहाँ से क्या कर रहा है, पहले इसने बैकग्राउंड बिल्ड किया कि इमर्जिंग इकोनॉमीज में कैसे जो बड़े बैंक्स होते हैं वो इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं, वो लोग जो वेल्दियर क्लाइंट्स है वहां तक लिमिट है उनका. बट जो मेजर पॉइंट है, जो मेरा सब्जेक्ट अभी आने वाला है, वो क्या है? बट डेवलपमेंट ऑफ दीज कंट्रीज economies require financing of the small businesses that dominate their manufacturing, farming and service sectors. So जो ये कंट्रीज की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से होगी? वो स्मॉल बिजनेसेस से होगी, जिसका बड़ा पार्ट है, जो एक बड़ा पार्ट फॉर्म करता है उनके इकोनॉमी में, उनके सर्विस सेक्टर में. अब तो किसी चीज का 90% अगर बैकवर्ड है, 90% कोई कंट्रीब्यूट, 90% का मार्केट में कैप्चर है और उसको आप फाइनेंस नहीं करोगे, तो हाउ द कंट्री विल ग्रो? सो यही मुद्दा है कि उसका जो इकोनॉमी है कंट्री का, वो नहीं हो पा रहा है उसके पोटेंशियल पे. क्यों? क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो अपने पोटेंशियल को कैच नहीं कर पा रही है, वो अपने पोटेंशियल के जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. तो उसके लिए सजेशन क्या दिया जा रहा है, उसके लिए मतलब एडवाइस क्या दिया जा रहा है?
So economic growth will be likely to occur if local banks take on this portion of the financial service markets. Now इसमें सजेस्ट किया जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस कंट्री का, अफ्रीका का और अदर रीजन्स का, वो कब होगा? अगर जो लोकल बैंक्स है, जो वहाँ की कंट्री की लोकल बैंक है, वो जो ये पार्ट छूट गया है, जो लो बिजनेस, छोटे बिजनेसमैन है, छोटे जो फार्मिंग सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उस पे अगर कैप्चर करते हैं लोकल बैंक्स, तो इकोनॉमी ग्रोथ हो सकता है। तो लाइक अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीशन वुड प्रोड्यूस द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट। तो पहले हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगा। कैसे करेगा? छोटे बिजनेस को फंडिंग मिलेगी और हमारा ग्रो करेगा। तो अगर इस थॉट का कुछ मुझे मिलता है, देन इट विल बी माई कंप्लीशन स्टेटमेंट। हमारा एंड थॉट क्या है कि लोकल बैंक्स को ये मार्केट कैप्चर करना चाहिए, लोकल बैंक्स को, छोटे बिजनेसेस को पैसे देने चाहिए। तो ये थॉट पे जो ऑप्शन काम करेगा, दैट विल बी आवर आंसर। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस वन बाय वन। नाउ लोकल बैंक्स, ठीक है, लोकल बैंक्स की बात कर रहा है, एक चीज तो मैच करती है। टेंड नॉट टू स्ट्राइव एज मच एज लार्ज फॉरेन बैंक्स टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट। अब डाइवर्सिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं होगी, इसका तो कोई मेंशन ही नहीं किया है। और हमको जो कंक्लूजन दिया है कि अगर छोटे बैंक्स इस मार्केट को कैप्चर करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो ये जो कंक्लूजन है उसके लिए मेरे को सपोर्टिंग स्टेटमेंट देना है। तो इसमें तो ऐसा मेंशन ही नहीं कि अगर मार्केट कैप्चर होगा तो इकोनॉमिक ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। सो दिस इज नॉट माय आंसर। नेक्स्ट इज स्मॉल फार्मिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। ये मेरा सब्जेक्ट आया यहाँ पे। कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इफ दे ऑब्टेन एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट कैपिटल। नाउ ये कह रहा है कि अगर जो छोटे बिजनेसेस हैं, फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर उनको सफिशिएंट, जितना जरूरी है उतना इन्वेस्टमेंट का पैसा मिलता है, तो ये इसमें मेरा सब्जेक्ट आ गया, इसमें एंड थॉट के साथ में मैचिंग आ गया, इसमें सपोर्ट कर रहा है कि मेरे कंक्लूजन को ये सपोर्ट कर रहा है, और ये पूरा पैराग्राफ का एक समरी जैसा मिल रहा है मुझे। ओके, सो ये अच्छा ऑप्शन है, तो लेट कीप इट असाइड। नेक्स्ट इज लार्ज फॉरेन बैंक्स। सब्जेक्ट एंड थॉट से टोटली डिफरेंट। अभी लार्ज फॉरेन बैंक्स तो सिर्फ बैकग्राउंड बिल्ड करने के लिए था, स्टिल विल रीड इट। in emerging economies could, with local employees and appropriate local consultation, profitably expand their business to less wealthy clients. अब वो किसका सपोर्ट लेके कैसे करके अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेगा? ओके, तो इससे ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? मेन मुद्दा तो ये है कि ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। अगर ग्रोथ होगी तो फाइन, नहीं होगी तो दैट इज नॉट माय आंसर एट ऑल। ओके, so C is not my answer. Next is some small businesses are among the wealthier customers to foreign banks. अब बात ही हो रही है बड़े चंक की, बड़े पार्ट की बात हो रही है। अगर 90% था मेरा बड़ा पार्ट, उसका 1-2% अगर क्लाइंट है फॉरेन बैंक्स के, तो उससे क्या ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी। सो सब्जेक्ट यहाँ पे तो नहीं है। एंड थॉट स्मॉल बिजनेस सब्जेक्ट को लिया इसमें, स्मॉल बिजनेसेस को, बट इसमें जो लोकल बैंक्स है उसका तो इशू ही नहीं है, लोकल बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है। और इसमें सम स्मॉल बिजनेसेस की बात हो रही है। इतना 90% में से अगर 1-2% को दे भी रहा है तो उससे कुछ होना नहीं इकोनॉमी का। ओके, so D is not my option. D cannot be my answer. Next is local banks, fine and thought के साथ मैच हो रहा है। In emerging economies tend to be less risk averse than foreign banks. अब जो लोकल बैंक्स है उसका रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो। तो ये तो मतलब जो हमारा एंड थॉट है कि लोकल बैंक्स को लेना चाहिए मार्केट, उसके टोटली अपोजिट बोल रहा है कि रिस्क नहीं लेना चाहते, लेस रिस्क अवर्स, रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अभी जो छोटे बिजनेसेस है, अगर उसको लोन दिया, पैसा वापस नहीं आया, तो लोकल बैंक्स पैसा ही नहीं देंगे। तो जब पैसा ही नहीं देंगे तो उनका ग्रोथ नहीं होगा, तो कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा। तो दिस इज टोटली अगेंस्ट आर support. This will weaken the statement. So my option is, answer is B option. My answer is B option. B option is my answer. So this is how we should solve the para completion question. Focus on the subject, focus on the conclusion, focus on the end thought. Last में किस बात पे बात खत्म हुई है, and that's how we'll solve it. So thank you, and next video I'll bring the next question.
ऑन क्रिटिकल रीजनिंग और पैरा कंप्लीशन। थैंक यू।